Hello, everyone. Welcome to this session of Stories on Rise World 2023. This panel is called Reignite, Finding Meaning and Direction After Grief and Loss. The past few years have been ones of a lot of loss, learning, of grief, and of understanding how we move out of this and move beyond our grief and move on with our lives. Today we have with us two amazing women who will be sharing their experiences of the tragedy that they have faced during this past pandemic that we have suffered, and how they have not just dealt with it and overcome their grief and the feeling of loss, but also carved a new path, a new identity for themselves. I am Sharon D'Souza Preto. I am an emotional intelligence facilitator, a life and relationship coach, and I volunteer with Aspire for Her. Aspire for Her is an organization that believes that every woman out there has an identity of her own and can contribute not just to her home and family, but to the economy, to building the nation and building the world. And as part of the many initiatives of Aspire for Her, our two speakers today are from our Not Alone community, the initiative which was started in response to the tragedy that unfolded in the second wave of the COVID pandemic. Let us welcome today our two panelists. We have with us Preeti Kate and Bijoyta Mehta. And I'd like them to introduce themselves. Preeti? Hello, Preeti. Hello, ma'am. Hi, everyone. Myself, Preeti Abhijit Kate, is from Dhule, Maharashtra. I completed BSc Physics, MCM. I lost my husband due to COVID-19 on 27th May 2021. I have two younger children and elderly parents-in-laws. I trained as a abacus teacher and took franchisee and started my own classes. And now I'm taking online and offline both batches, and it is successful going. Thank you. Thank you, Preeti. We also have with us Bijoyta Mehta. Bijoyta is a wellness advisor and a social media influencer. Bijoyta? Yeah, thank you and good afternoon, everyone. Myself, Bijoyta. I'm from Kolkata. By background, as Sharon said, I'm a wellness advisor. I did my master's in mass communication, and as Preeti shared, we are sharing the same fate. I also lost my husband due to COVID last year, 2021, 2nd of May. So this is my journey, and presently I'm surviving with my daughter. She's appearing boards this month, this year, and my mother-in-law. And now I'm her, not only her daughter-in-law, I'm her son, and I'm her daughter as well. Thank you so much. Bijoyta, if you can also tell us a little bit about your work history, your educational background, to understand how you got into entrepreneurship, basically. Yeah, sure. I did my master's in mass communication from Calcutta University. And after that, basically, I was not in this profession before, and I was too obese. So that time I thought that I needed something to transform myself. So after that, gradually I started transforming, and after that I took this profession as wellness advisor, and now I am helping others to stay in a very good lifestyle, to stay in a good shape also. Okay. Thank you, Bijoyta. So, Preeti, I'll ask you the next question. So, how did you think of
deciding on abacus classes. It is not a very conventional mode. So there might have been people who told you that, maybe you should get back to, start working or take up a job or a training, which would require to work out of home. Why did you think of starting your own franchise in your own classes? यस मैम, जब मेरे हस्बैंड का ऐसा हुआ तो उसकी वजह से हमारे यानी फैमिली में बहुत सारे यानी ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे हस्बैंड एक मेन पिलर थे हमारे लिए, तो फिर यानी बहुत शॉकिंग था हमारे लिए तब। बट हमें जब पता चला ना ऐसा, तो फिर मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आपका भी बीएससी फिजिक्स हुआ है तो आप बीएड करवा लो, इसके बाद आप कौन से भी स्कूल में एज ए टीचर आप अपॉइंट हो सकते हो, तो बाहर जाके जॉब करना है आपको। बट मैंने तभी ये डिसाइड किया कि बाहर जाके अगर जॉब करना है तो 8 से 9 घंटे तो बाहर रहना ही होगा। फिर मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मेरे इन लॉज भी है घर पे, तो अभी उनका ख्याल कैसे रखा जाए। और बाहर का भी यानी जैसे मेरे शादी को जैसे 10 साल हो गए, तो मुझे बाहर का भी ज्यादा नॉलेज वगैरह नहीं था, हम पूरा हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड थे। तो तभी जब मुझे ये आइडिया मिला जो एबेकस क्लासेस के लिए जो एक मैम है ठाकुर मैम, अरुणा ठाकुर मैम, तो उन्होंने मुझे गाइडलाइन किया कि उन्होंने बोला कि लेडीज के लिए जॉब यानी ये टीचिंग एकदम क्लासेस लेना एक बहुत अच्छा है, इससे आप घर संभाल के बच्चों को ध्यान देके क्लासेस हैंडल कर सकते हो। तभी मैंने इस पे सोचा, मैंने घर में मेरे इन लॉज को बताया, तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। तो फिर मैंने घर पे ही ये फिर ट्रेनिंग वगैरह लेके फ्रेंचाइजी ली और मैंने ये क्लासेस शुरू करने का फिर फैसला किया। ओके, या थैंक यू प्रीति। तो आपके जो फैमिली है वो आपसे Yes. आपके मुझे लगता है सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है ना? यस यस मैम, फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट है ये करने में, मेरे इन लॉज। हाँ हाँ, आप कह रहे थे, आप बोलिए। सबसे मेन सपोर्ट तो मेरा अरुणा ठाकुर मैम है, जिन्होंने मुझे गाइडलाइन किया क्लासेस के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे करेक्ट डायरेक्शन दिया और वो मुझे यानी लगा कि ये यानी सही है करने के लिए। फिर मेन मेरा सपोर्ट सिस्टम है मेरे 2 प्यारे बच्चे, क्योंकि उन्हें देख के ही मैं जो आज जो स्टैंड लिया है बस मैंने उनके लिए और मेरे इन लॉज के इनके लिए किया है, क्योंकि अभी जो मेन पिलर है मेरे हस्बैंड के बाद अभी वो स्टैंड मैंने लिया है और मुझे करना है वो। तो मेन सपोर्ट सिस्टम मेरे इन लॉज है, मेरे सिस्टर इन लॉ है, मेरे मैटरनल फैमिली है, और नॉट लास्ट फॉर द लिस्ट एस्पायर फॉर हर टीम, बिकॉज मैंने जब से उनसे कनेक्ट में आई तो मुझे उनसे मोटिवेशन मिला बहुत ही वो करने के लिए, जो पॉजिटिविटी मिली बस मुझे बस उनसे ही मिली, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मैम ये सब करने के लिए। Okay, that's good to hear. क्योंकि ये जो सपोर्ट है, तो आपके फैमिली ने शायद फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको दिया इनिशियली, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह के लिए और आपके क्लासेस हाँ सेटअप करने के लिए, राइट? यस मैम। तो आपने जब लास्ट ईयर शुरू किया था, अभी 1 साल में कितना बढ़ गया है? यस मैम, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस हैंडल करती हूँ। तो 1 ईयर में मुझे अभी मेरे पास यानी 74 स्टूडेंट्स इनरोल्स हैं मैम, नियर अबाउट 74 to 75 स्टूडेंट्स इनरोल्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट यानी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है पेरेंट्स का भी, क्योंकि मैं उनको अच्छा एक रिजल्ट दे रही हूँ क्लासेस के दौरान, तो बच्चों को जो आना चाहिए, पेरेंट्स भी बहुत सेटिस्फाइड है मेरे क्लासेस में, तो टीचिंग वगैरह सब उनको बहुत पसंद है मैम मेरा। ओके, दैट्स गुड, अच्छी बात है। विजयता, आपने जो ये फील्ड सिलेक्ट किया है, द एरिया दैट यू हैव चोजन ऑफ बीइंग अ वेलनेस एडवाइजर, I'm sure there would have been different challenges that you have faced, especially continuing after the demise of your husband. Yes. बेसिकली क्या था, माय हस्बैंड मतलब उनका जो मतलब खाना वाना ये सब एकदम ठीक नहीं था, तो उसको देख के मैं इस फील्ड में थी, बट कभी भी उनको मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई थी। जो बाहर का ऐसा होता है ना कि घर का मुर्गी दाल बराबर होता है ना, एक बात होता है, तो मैं कभी भी उनको ट्रैक में ला नहीं पाई। तो उस टाइम पे मैंने सोची कि मेरा तो इतना बड़ा लॉस है,
घर घर में तो ऐसे ही होता ही है, मतलब अभी। और फिलहाल क्या है, आफ्टर दैट COVID-19 पीपल हैव बिकम सो मच कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। तो उस टाइम पे तो मैं जस्ट एज अ पार्ट टाइम करती थी, बट एंड ही वाज द ओनली पिलर ऑफ आवर फैमिली एंड ही वाज द ओनली अर्नर ऑफ आवर फैमिली। सो आफ्टर ही पास्ड अवे तो मुझे तो पूरा टेक ओवर करना पड़ा, क्योंकि मेरा सासू माँ, मेरी बेटी, तो सबके लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आई बिकम द हेड ऑफ द फैमिली। मैं तो इसके बाद मैंने सोची कि इतना बड़ा लॉस मेरा मेरा हुआ है, खुद का हुआ है। घर घर पे ही ऐसे तो बहुत कुछ है। तो दैट टाइम आई थॉट कि मैं खुद इसको प्रोफेशन एज ए एकदम मतलब प्रोफेशन करके मैं लूं। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एंड आई गॉट ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स, क्योंकि सब चाहते हैं ठीक रहूं, अच्छा रहूं। एंड ये वेलनेस फील्ड में क्या होता है, ठीक है वेट लॉस तो हो ही जाता है, दैट इज नॉट अ पार्ट, वेट लॉस इज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन था, मैं खुद का ग्रूमिंग मेरा खुद का ही है। तो उसके बाद मैं सोची कि अगर एक लड़की जो इतना ओबीज है, उसको भी अगर कुछ धीरे धीरे थोड़ा मोटिवेशन देके, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके वो अगर ठीक हो जाए, तो दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर मी। क्योंकि ऐसा है ना, बहुत जन है शादी नहीं होता है ड्यू टू ओबिसिटी। तो ऐसा मैंने भी खुद रिजल्ट क्रिएट किए, तो it's a god gifted result. So that is why now I'm doing this full fledgedly, and I'm happy with my profession because I am doing something good for others. Right, right. So the challenges you would have faced would have been many, as far as maybe Yes. one would be maybe the financial challenge which is there, but also Yeah. skills, knowledge, and challenges from society. Yes, yes. Society, the challenges which I face, because my profession demands मतलब अच्छा प्रेजेंटेशन, आप कैसे बात करो। एंड बीइंग अ कम्युनिकेशन स्टूडेंट, मेरा जो मैंने कहा कि आई एम मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, तो मेरा जो स्ट्रेंथ, मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दैट इज माय पब्लिक रिलेशन, दैट इज माय कम्युनिकेशन स्किल, दैट आई माई सेल्फ थिंक, बट आई डोंट नो व्हाट अदर्स थिंक। बट उसके बाद मेरा जो आफ्टर अ मंथ आई थॉट कि अगर why should I show my grief to others? Why should I show my sorrow to others? I don't want anyone pity on me. तो उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट किया ग्रेजुअली। उसके बाद सोसाइटी का जो होता है कि क्यों ऐसा फिर से इसका ये हो गया, why is she wearing red? ये रेड कलर को लेके बहुत मतलब एक अभी भी एक सोशल टैबू है कि जो विडो है, she is not allowed to wear any kind of red. But I started wearing red, taking permission from my mother-in-law. She said, "Ab pehno. This is just a color. This is just a color." Then उसके बाद धीरे धीरे मैं फिर से मैंने स्टार्ट किया। मैं क्योंकि I don't want to carry my this sorrow as baggage, क्योंकि वो है मेरे साथ ही है। He is guiding me as my guiding angel. That's all. I think what you just said is really very beautiful, because um, each one of us deals with grief, with loss in our own way. And you and even Preeti, and I'm sure so many women out there have found their own way of dealing with grief. I'm sure if there's a maybe some technique or some special way that you have found which has helped you of dealing with this loss, with grief, and overcoming it maybe to an extent, but also facing it and moving ahead. If there is something that you would like to share with our audience, I'm sure it would be really valued. कि आपने खुद कैसे हैंडल किया है, प्रीति या विजयता, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। मैंने हैंडल किए क्योंकि दैट टाइम ना मेरे साथ बहुत सारा लेडीज, एंड आई एम वेरी एक्टिव इनटू सोशल मीडिया। सो मैंने जब वो लाल एक साड़ी पहन के मैंने जो पोस्ट किया था, तो उसके बाद जो जिनका ये ऐसी सेम सिचुएशन मतलब सेम ट्रेजेडी हैपेंड विद देम आल्सो,
they started communicating with me कि Vijayata, how are you coping up with this situation? Please help us. Please do help us. तो it is a really, I mean, मैं खुद को कैसे पता नहीं है, but बहुत जन को मैं मोटिवेट करती हूँ. And they said कि Vijayata, you are a real inspiration for us also. क्योंकि मैं जब बाहर निकलती हूँ, मैं एकदम ठाठ से निकलती हूँ, किसी के तरफ देखती नहीं हूँ. जैसे मैं पहले थी वैसे ही मैं चलती हूँ. क्योंकि माई डॉटर इज ऑल्सो लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम मी के मम्मी भी ऐसे कर रही है, तो ठीक है, अभी सोसाइटी का कुछ भी मतलब सोचो मत, आगे बढ़ो, बिकॉज आई एम यूनिक. That's true. That's I true. think I'm unique. Because we all are. Now, each one of us is different and unique in our own way. Yes, all are unique. Yes. True, true. Preeti, what about you? Any particular technique that you have used to deal with your grief and move forward? यस मैम. जब ऐसे मेरे साथ भी ट्रेजेडी हुई तो मेरे हस्बैंड ने जब पास आउट हुए तो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के भी लोग आए मैम. तो कोई ऐसे भी रहते हैं लोग की जो यानी कि ऐसा होता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे भी होते हैं. और कुछ पॉजिटिव भी है कि ऐसा हो जाने के बाद भी इसने अच्छा स्टैंड लिया, इतनी जल्दी उस फेज से बाहर आई. और मैंने भी कुछ यानी मई महीने जैसे ऐसे हुआ तो मैंने एक 6-7 मंथ्स के बाद ही मैंने ये सब एबेकस क्लासेस की ट्रेनिंग वगैरह लेके फिर जैसी लेके मैंने क्लासेस स्टार्ट किए. तो बस ये जो मुझे एनर्जी मिले सबसे पहले तो मेरे बच्चों से ही मिले मैम, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब है. क्योंकि अभी उनके पापा नहीं है तो सिर्फ वो मेरे पास मुझे ही देखते हैं. और मैं अगर अच्छे से ना रहूं तो फिर बोलते हैं मम्मी आप ऐसे क्यों रहते हो, पहले तो ऐसे नहीं थी ना. तो मुझे माने उनके लिए ऐसा रहना पड़ता है मुझे ऐसा. और 24 घंटे तो मुझे तो बस मेरे हस्बैंड का ही फेस नजर आता है मैम. तो यानी जो मुझे उनसे जो इंस्पिरेशन जो मिलती है मुझे तो मेरे हस्बैंड से भी मिलती है, क्योंकि वो हर एक काम में बहुत परफेक्ट थे, वो पंचुअल थे. तो सब ये जो सब ये सबका जो मिलके जो सपोर्ट है बस मैं उससे ही अभी खड़ी हूँ. और मैंने जो अबैकस क्लासेस स्टार्ट किया तो वो अभी बहुत सक्सेसफुल है. बस इसका मुझे बहुत ऐसे खुशी होती है कि जो मैंने जो डिसीजन लिया वो अभी वर्क ऑन है. बस. Right. Okay. Okay. So, what are your future plans? कि आगे आप क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है कि अपना खुद का वेंचर कुछ शुरू करना. So I'm sure there will be many people in the audience who have started their own venture or who are interested in starting, and seeing, or even those who have gone through an experienced grief and sorrow and loss like you have, and हिम्मत कहाँ से मिलेगी. हर लोग सोचते हैं ना कि हम आगे कैसे बढ़े, and how do we start our own venture, and how do we keep it running in spite of things that have happened. So I think we have two very strong examples here of Preeti, who has taken a very unconventional route and started off on her own. And Vijayata had started off something on a very small basis, and then because of this tragedy, she has worked harder and made it a full-time profession, her own calling, so to speak, as an entrepreneur, as an advisor. She's doing her own bit. So, what are your future plans, Preeti? How do you see your business? Yes. सबसे पहले तो मेरा फ्यूचर प्लान अभी यही है, जो मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों के लिए हमारे लिए जो ड्रीम देखा था वो मुझे मेरे बच्चों के थ्रू कंप्लीट करना है. मुझे बच्चों को अभी अच्छा फ्यूचर देना है, उनको अच्छा एजुकेशन देना है और उनको बहुत बड़ा होकर मुझे देखना है कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे जाना चाहिए. सबसे मेन फोकस तो मेरा अभी मेरे बच्चे ही है. देन उनकी हेल्थ, उनकी और मेरी हेल्थ, ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्दी रहना अभी तो हमें यानी खुद को ही खुद की केयर लेनी है, बस अभी यही देखना है. देन सेकंडली मेरे जो फोकस रहेगा वो है मेरा अभिजीत बेस्ड एबैकस क्लासेस, जो मुझे इस धुले एरिया में मुझे बस ऐसा ही चाहिए कि वो धुले में यानी हमारी सिटी में वो सबसे एक बड़ा सेंटर होना चाहिए एबैकस का,
जैसा मैं अभी हार्डवर्क ले रही हूँ, मैं आगे जाके डेफिनेटली लूंगी। सब पेरेंट्स जो मुझे अभी जो ट्रस्ट करते थे, जो मेरा क्लास का रिजल्ट है, जो कुछ यूनिक मैं करती हूँ मेरे क्लास में बच्चों के लिए एक्टिविटीज वगैरह, तो वो मैं आगे जाके वैसे ही कंटिन्यू करूंगी और कुछ ना कुछ उसमें और ज्यादा एडिशनल ऐड भी करूंगी। तो बस मुझे तो मेरे क्लासेस पे जो मेरा अभिजीत बेस्ट एबैकस क्लासेस की जो ट्रॉफी है, जिस पर मैंने मेरे हस्बैंड का जो फोटो लगाया है, तो वो हर एक घर में होना चाहिए। बस यही मेरा भी एम रहेगा। और ये नाम सबने सुनना चाहिए। जो मेरे अभी हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, बट वो सबके दिल में रहने चाहिए। बस यही मेरा मोटो है, मेरा यही फोकस रहेगा कि मेरे जो क्लासेस है बस वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल और होने चाहिए। यही मेरा एम है अभी। All the best to you, Preeti. That's a Thank you, very, ma'am. Thank you so much. very noble plans. Yes, for sure. Yes. Yes. Vijoyita, what about you? What are your future plans? माय फ्यूचर प्लान ऑफ कोर्स बेटी को एक जगह पे लेके जाना, क्योंकि शी वाज मोर क्लोज टू हर फादर देन मी। एंड वो दो जब बात करते थे एक साथ, मतलब तब एवरी टाइम, मतलब क्या पढ़े, किस जगह पे जाना है, अब्रॉड में जाके पढ़ना है, बहुत सारा प्लान्स था। तो अभी मेरा यही एक फोकस तो अभी फिलहाल है, उसको एक जगह पे खड़ा करना, एक जगह पे देखना। एंड सेकंड, वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, मेरे हस्बैंड के नाम पे एक कम्युनिटी भी चलता है, कांचन कम्युनिटी बोल के। तो वहाँ पे जो जो मतलब नीडीज है और जो मतलब जिनको डिस्ट्रेस पीपल है, सबको हेल्प किया जाता है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कम्युनिटी, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। एंड और एक जो मेरा है, मैं अभी फिलहाल जिस पे फोकस्ड हूँ बहुत, मतलब क्योंकि मैंने फिर पहले जो कहा था कि बहुत सारा लेडीज जो अभी कोविड डिस्ट्रेस्ड है, तो उनको लेके मेरा एक खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जहाँ पे हम खुद मतलब खुद का एक पहचान बने। मैं तो किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी का डॉटर इन लॉ हूँ, और ऑन टॉप मैं खुद का एक पहचान बनाना चाहती हूँ कि मेरे नाम से सब मुझे पहचाने। तो ये मैं कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं जो जो कोविड डिस्ट्रेस है, नॉट ओनली कोविड डिस्ट्रेस, जो अलोन है, मतलब सिंगल मदर है, सबको लेके मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे बनवाना है। दैट इज माय ड्रीम। एंड मेरा वेलनेस का जो एडवाइजिंग जो मैं करती हूँ एज ए एडवाइजर, वो जर्नी तो होगा ही, चलता रहेगा, क्योंकि वो मैंने जो कहा मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है, मैं भी ये नहीं चाहती हूँ किसी और के साथ हो। तो पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ठीक रहेगा तो वेल्थ तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो दिस इज माय मोटो, दिस इज माय फ्यूचर प्लान्स, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you, Vijoyita. And any specific message that you would like to share with our audience? यस, ऑफ कोर्स। क्योंकि मैंने जो मेरा जो जर्नी है, मैं जो स्ट्रगल फेस की हूँ, बीट सोशल जो है, सोशल मतलब नेबरहुड या सोशली, मतलब जो मैंने फेस किया है, तो उसमें एक चीज मैंने सीखी हूँ कि खुद का एक पहचान बनाओ, ताकि बी यूनिक। तुम्हारे नाम से तुमको सब बुलाए, तुम्हारे नाम से तुम्हारा खुद का पहचान हो, तो कुछ करो, डोंट सिट आइडल, कुछ करो। मतलब फॉर ऑल द लेडीज दिस इज माय ओनली मैसेज, कुछ करो, बिना बैठे कुछ सोच के जो मन में आए वो करो, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइफ इज टू गोज ऑन, एंड लाइफ इज टू मूव ऑन। True. Thank you, Vijoyita. Preeti, is there any message that you would like to share with our audience? Yes, ma'am. I would like to share something. I just only say that never wait for a perfect moment. Just take a moment and make it perfect. हमें कोई भी जो काम करना है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अबैकस क्लासेस स्टार्ट करना था,
तो मैंने एक टाइम का नहीं इंतजार किया कि मुझे भी ये टाइम पे करना है क्या क्या ऐसा। मैंने बस एक जो मुझे जब स्टार्ट करना था मैंने कर दिया, लेकिन किसी के लिए मैंने वेट नहीं किया। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि कुछ भी काम करना है तो उसका सोचो मत ज्यादा कि नहीं अभी ये राइट टाइम नहीं है, हमें अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर के बाद करते हैं। अगर ऐसा सोचा तो वो टाइम भी चला जाता है और वो मूवमेंट भी परफेक्ट मूवमेंट नहीं होता। इसीलिए बस यही कहना चाहूंगी, कुछ भी काम करना हो तो बस वो परफेक्ट टाइम में ही करना चाहिए। yes. True, very true, Preeti. In fact, I think that is uh, for all of us who are, budding entrepreneurs, for all of that, for us who have dreams, hopes, somewhere deep inside, I think both Bijoyta and Preeti have given some very valuable, uh, you know, thoughts for us to think about and to work on also. So find your passion, find what it is that makes you feel happy, and work on it. Don't just sit aside and don't just leave it. Don't just, go through life. Live it. Live each day as it comes and make the most of it. And don't wait for that perfect moment. Seize the moment, work on it, and do your best, because that's how your dreams will actually be fulfilled. And which is very true what both Preeti and Bijoyta have been doing. I think it has been a very inspiring conversation. There's a lot that we can take back with us. And for all of you, women and men also, all those who are joining in and watching this conversation and listening, have shared in and listened to the experiences and stories. We invite you to explore the other stories, the other roundtables, workshops which are happening at the Rise World Summit this February, over the next few days. And we also invite you to check out Aspire for Her. If you would like, if you are a woman, and we're welcoming you with open arms. If you are not a woman, a man, or a person of the third gender, and you would like to support the journey that women are on, we need all the supporters also. So welcome, and let's get together, go together, move ahead, learn from the inspiring women here and so many more inspiring people, and make a little difference ourselves. Yes, let us be the yeast that not just rises but also lifts each other up. Have a lovely day and enjoy the rest of the summit. Thank you.